कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन इवेलुएट n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पर a की वैल्यू a में दिया है n की वैल्यू 8 और r की वैल्यू 6। सेकंड क्वेश्चन में b में दिया है n की वैल्यू भी 12 r की वैल्यू भी 12। सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन बहुत इजी है, पहले लिख दिया हमने। a क्या हमको गिवन है n इज इक्वल टू 8 r इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है 8 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल, n माइनस r मतलब 8 माइनस 6 2 फैक्टोरियल। इसको मैं इस तरह 8 फैक्टोरियल को ऐसा लिख सकता है 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 फैक्टोरियल क्या 6 5 4 3 2 1, तो 6 फैक्टोरियल को ओपन करने की जगह मैं 6 फैक्टोरियल ऐसे लिख दिया। 8 माइनस 6 मेरा 2 फैक्टोरियल। दिस 6 फैक्टोरियल दिस 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। आंसर बचा मेरा 8 7 द ऊपर 56 और नीचे आ गया हमारा 2 फैक्टोरियल का 2 1 द 2। डिवाइड करें 2 1 द 2 2 2 द 4 1 हो गया लेफ्ट, तो 1 इधर लिखे तो 16 हो गया, 2 8 द 16। तो आंसर क्या आ गया ए का 28। सिमिलरली सेकेंड वन बी को सॉल्व करेंगे हम लोग। बी की वैल्यू एन भी 12 है, आर भी 12 है। क्वेश्चन लिखे एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। वैल्यू रखे 12 फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल में भी 12 फैक्टोरियल, एन माइनस आर 12 माइनस 12 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल हमारा क्या कैंसिल आउट, ऊपर 1 बचा, नीचे 12 माइनस 12 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल ऑल्सो क्या होता है 1 होता है, 1 अपॉन 1 आंसर क्या आ जाएगा ओनली 1। वन माइनस 3w प्लस w स्क्वायर द होल क्यूब इज इक्वल टू 65 if w is a complex cube root of unity. Solution: here w is given is the complex root of unity, complex cube root of unity. So therefore, so we know that if w is a complex cube root of unity means that w cube is equal to 1 and w square plus w plus 1 is equal to 0. We can also write in the form of this one, w square is equal to minus w minus 1 or w square plus w is equal to minus 1. As per situation we have to use this answer. Now question is left hand side is equal to 2 plus w plus w square the whole cube minus 1 minus 3w plus w square the whole cube. Now we already know that w plus w square is equal to minus 1. We have to return here bracket
2 plus minus 1 bracket close the whole cube minus 1 minus 3w. Here we know that w square is equal to minus w minus 1. So we have to return here plus bracket minus w minus 1 bracket close the whole. Solve this bracket 2 plus minus minus plus minus minus, we have to return 2 minus 1 the whole cube minus bracket 1 minus 3w. Here plus we have to open the bracket plus minus minus w plus minus minus 1 the whole. 2 minus 1 1 the whole cube minus bracket here minus 3w minus w is minus 4 and minus 1 and plus 1 it become cancel. So minus 3w minus w minus minus plus sign of greater number is minus 4w the whole cube. Now 1 raised to cube is 1 minus 4 raised to cube is 64 and minus 4 here minus 4 raised to cube means minus 4 multiply minus 4 multiply minus 4. 4 for the 16, 16 for the 64. But here minus and minus is plus and plus minus minus. Simple method. If the power is in odd, पावर अगर पावर ऑड में हुआ और ये माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, और पावर इवन में है तो क्वेश्चन हमारा माइनस में या प्लस में तो आंसर ऑलवेज प्लस में है. तो यहाँ 3 इज द ऑड नंबर, द आंसर इज minus 64. Minus 64 and w cube. We have to open the bracket 1 minus 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 plus 64, but we also know that w cube is equal to 1. So answer is 65, which is equal to right hand side. So therefore we have to return final answer. Left hand side is equal to right hand side. Means 2 plus w plus w square the whole cube minus 1 minus 3w plus w square the whole cube is equal to 65. Next question is differentiate the following with respect to x. Y is equal. अब पूछा है if p q r, यहाँ दिया है किस फॉर्म में दिया, इसको ये हमें बिल्डर फॉर्म में दिया, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना, मतलब इसके एलिमेंट्स को फाइंड करके आंसर लिखना. एग्जाम्पल p set x such that x square plus 14x plus 40 equal to 0. अब p को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे दिस इन द बिल्डर फॉर्म, और हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे. ये हमको बिल्डर फॉर्म में दिया है, अभी हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे. p इक्वल टू सॉल्व किए तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40 इक्वल टू 0 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 40 को हम लोग यहाँ पर दो पार्ट में मल्टीपल डिवाइड करें बाय एडिशन, क्या उसका मिडल टर्म हो तो क्या होगा 10 4 द 40, जो हमने 10th स्टैंडर्ड पढ़ा है.
अब दोनों को क्या करना है, यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, मतलब दोनों को प्लस करना होगा। तो 10 + 4 क्या आ जाएगा, 14। तो हमारी दो क्या ब्रैकेट बन रही है, x + 10 x + 4। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, अगर इसका हम लोग सॉल्व करें तो x + 10 और ये x + 4 = 0। जब इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे, सिर्फ एलिमेंट लिखेंगे तो क्या बचेगा, एक -10 -4। तो p की वैल्यू क्या मिली, -10 और -4। सिमिलरली भी q को सॉल्व करेंगे, q such that x square minus 5x plus 6 = 0। तो जब q को सॉल्व करेंगे, फाइनली q का आंसर क्या आएगा, 3, 2। ठीक है, मेरे को 6 को डिवाइड करना है, मल्टीपल ऑफ 6, एडिशन और सब्ट्रैक्शन -5 मिले तो 3 2 ज़ा 6। जब -2 -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 होगा और फाइनल आंसर 3 और 2। सिमिलरली r इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व दैट r = आंसर क्या मिलेगा, फाइनल हमको 23 = 60 होता है और 20 - 3 17 होता है। 60 को जब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल फैक्टर में डिवाइड करेंगे तो 23 = 60 या -20 और ये +3 +20 -3। ठीक है, ये तो माइनस चाहिए मल्टीपल में, लेकिन एडिशन में हमको चाहिए प्लस। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस और 70। तो आंसर फाइनल मिलेगा -20 + 3। तो हमको 3 सेट मिल गया पी क्यू आर। वन मोर टाइम वी हैव टू रिटन हियर। अब क्वेश्चन है पहला, हमारा पहला क्वेश्चन है P यूनियन Q, सेकेंड है Q इंटरसेक्शन R, थर्ड है P यूनियन ऑफ Q इंटरसेक्शन R। तो 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करें। P यूनियन Q, यूनियन में है ऑल एलिमेंट ऑफ P और Q, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट। तो P में क्या है हमारे, -10 -4, Q में हमारे क्या है 3। तो पहला सॉल्व हो गया। सेकेंड वन, Q इंटरसेक्शन R। Q इंटरसेक्शन R क्या है, दोनों में जो कॉमन है, तो Q में क्या है 3 2, R में -20 और 3, तो कौन कॉमन है, 3 इज कॉमन, Q इंटरसेक्शन R। थर्ड क्वेश्चन है हमारा P और Q इंटरसेक्शन R का दोनों में टोटल एन P के क्या है, -10 -4, R में और Q इंटरसेक्शन R क्या है 3। ये दोनों का क्या हो गया, यूनियन। ये दोनों का यूनियन। फिनिशन एक बार हमने यूनियन और इंटरसेक्शन का